بہتر تو یہ ہے کہ ہم سارے بیٹھ جائیں. بیٹھ جاؤ. 10 سے 15 منٹ کی میں نے بات کرنی ہے, ذرا بیٹھ کر سن لیجیے. ایک عظیم الشان پروگرام بورا والی اور وہاڑی کا ایک ہفتے کا تقریباً پروگرام تھا, اور وہاں سے ڈائریکٹ آپ کی محبت کے لیے سیدھا ناروال میں آ رہے ہیں. کوئی بریک نہیں, کوئی کھانا نہیں, کوئی کچھ بھی نہیں کیا. آپ کے بڑے پیر صاحب کا حکم تھا کہ آپ لوگ نے یہاں پہ سیدھا آنا ہے, تو سیدھا بورے والے سے آپ کے پاس حاضر ہو رہے ہیں. اسی آپ کی محبت ہے, آپ کا پیار ہے, لیکن اب یہاں پر میں اتنی دور سے یہاں پر آیا, آپ کی محبت کے لیے آیا, آپ کے پیار کے لیے آیا, تو آپ لوگوں نے بھی ذرا یا رسول اللہ اس طرح کہنا ہے کہ میری جو تھکاوٹ ہے ساری اتر جائے. جتنے چہرے میرے سامنے موجود ہیں, آواز کھولیے, یہ آواز صاف کا, میرا گدے دا زور لگ رہے ہیں, آواز ہے یہ صاف کر دے, بالکل زور نہیں لگنا چاہیے میرا. یہاں پر جتنے چہرے میرے سامنے موجود ہیں, یا رسول اللہ ہاتھوں کو اٹھا کے کہنا ہے, زبانوں کو ہلا کر کہنا ہے, یا رسول اللہ کی گونج آنی چاہیے. یا رسول اللہ اس طرح کا کہنا ہے کہ ہمیں پتا چلے کہ میرے سامنے رسول اللہ کے شیر غلام بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے پتا چلے کہ میرے سامنے خواجہ نور محمد چرائی کے ملنگ بیٹھے ہوئے ہیں. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ وہ آواز سے بلند کہنا ہے, یا رسول اللہ سینے کا زور لگا کے کہنا ہے, ہاتھوں کو اٹھا کے کہنا ہے, پوری طاقت کے ساتھ یا رسول اللہ کہنا ہے, تاکہ پتا چلے کہ یہاں پر رسول اللہ کے غلام اکٹھے ہوئے ہیں. مکہ کی وادیوں میں نکلے, ذرا سن لینا ہے, اس کے بعد بھی یا رسول اللہ کہنا ہے. یہ جو آپ لوگ نوجوان چہرے میرے سامنے موجود ہیں نا, اپنی جوانی کو رسول اللہ کے نام پر لگاؤ. یہ جتنے بزرگ ہیں اپنے بڑھاپے کو رسول اللہ کے نام پر لگاؤ. یہ نہ جوانی سزا رہنی ہے, نہ بڑھاپا سزا رہنا ہے. رہنا سزا کچھ بھی نہیں ہے, اگر سزا رہنا ہے تو رسول اللہ کا نام پر کیا جا رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی وادیوں میں سیر و سیاحت کے لیے نکلے. اب آپ نے جب سیر و سیاحت کے لیے نکلے نا, تو آپ کو نا عرب کا ایک لال اونٹ پسند آ گیا. آپ کی نظر نا اس لال اونٹ پر پڑ گئی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لال اونٹ کو دیکھا نا, تو حضور کی نظروں کو, حضور کی مبارک آنکھوں کو وہ لال اونٹ پسند آ گیا. جب وہ لال اونٹ میں یہاں پر کہتا ہوں کہ قربان جائے اس اونٹ کی قسمت پر, میں یہاں پر کہتا ہوں کہ قربان جائے اس اونٹ کی قسمت پر کہ جس اونٹ پر میرے نبی کی نگاہ پڑ گئی ہے. قربان جائے اس اونٹ کی قسمت پر کہ جس اونٹ پر میرے نبی کی نگاہ پڑ گئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نا وہ اونٹ بڑا پسند آیا. آپ کو وہ اونٹ بڑا پسند آیا. جب آپ نے اس اونٹ کو دیکھا نا, تو آپ نے اس کے مالک سے بات کی کہ بتا بھائی یہ اونٹ کتنے کا لینا ہے, یہ تو نے اونٹ کتنے کا لینا ہے. اس مالک نے نا قیمت بتائی اونٹ کی
रसूल की निगाह करम इधर भी हो जाए तो हमारा तो सौदा पहले ही आपके बाजार में हो चुका है। अल्लाह के रसूल, हमारा सौदा तो पहले मदीना में हो चुका है। हमारी जानें भी आपके लिए हाजिर है, हमारा ईमान, हमारा तन मन धन सब आप पे या रसूल कुर्बान है। तो जब हुजूर साहब को वो ऊंट पसंद आया ना, तो हुजूर ने फरमाया ना, उसके मालिक से कहने लगे कि मेरे पास देने के लिए कीमत नहीं है, अभी मेरे पास नहीं है। मैं ऊंट लेने की नीयत पर नहीं आया था, ना मैं यहाँ पर ऊंट लेने के लिए आया था, मैं तो सैर व सयाहत के लिए निकला था। मुझे इस ऊंट पर मेरी नजर पड़ गई, मुझे ऊंट पसंद आ गया है। तो आपने कहा अरब का जो ऊंट है ना, लाल ऊंट जो अरब का होता है, वो कभी किसी अरबी से पूछे निहायत महंगा ऊंट होता है, वो आम सौदा नहीं किया जाता। जैसे यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में महंगी महंगी गाड़ियां है ना, वैसे वहां पर उस अरब में जो लाल ऊंट है वो बड़ा कम होता है, वो उसकी कीमत निहायत महंगी है, वो सस्ता ऊंट नहीं होता। तो अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस ऊंट को पसंद किया ना, तो हुजूर ने जब उस ऊंट को पसंद किया तो हुजूर ने कहा मेरे पास देने को कीमत नहीं है। तो उस बंदे ने कहा कि ठीक है, अल्लाह के रसूल आप ले जाइए। अल्लाह के रसूल, यहाँ पर तो पहले कोई चीज लेनी होती है ना, तो पहले यहाँ पर कहते हैं अपना नाम लिखाओ, अपना आईडी कार्ड दिखाओ, पहले आपने कोई कीमती चीज लेनी हो तो पहले स्टाम्प पे दिखाया जाता है। लेकिन जब अल्लाह के रसूल ने उनसे ये ऊंट मांगा ना, तो उसने ये नहीं कहा कि ए अल्लाह के रसूल पहले मुझे अपना नाम बताइए, पहले मुझे अपनी वल्दियत बताइए, पहले मुझे अपना शनाख्ती कार्ड बताइए। नहीं, वो देखते ही रह गया और देखते देखते कहा कि अल्लाह के रसूल ऊंट के ले जाइए, अल्लाह के रसूल इस ऊंट को ले जाइए। अब जब ऊंट लेकर चला गया ना, तो साथ वाले कहने लगे तू पागल तो नहीं हो गया, तू पागल तो नहीं हो गया, तू इस बंदे को जानता है ये कौन है? कहने लगा नहीं जानता। कहने लगा तूने इसका एड्रेस नोट किया है, इसका पता है? कहते मुझे तो पता नहीं, पता ये कौन है? तुझे पता है ये कहां से आया है? कहने लगा मालिक, कहने लगा मुझे तो नहीं पता ये कहां से आया है। कहने लगा तूने ऊंट दिया क्यों है? तू इसे जानता नहीं है, तू इसे भी जानता नहीं है, तूने ऊंट दिया क्यों है? कहने लगा तू मेरे से कीमत की बात कर रहा है, तू मुझसे ये पूछ रहा है कि मैं इसका पता पूछता? मैं तो इसका चेहरा ही देखता रह गया हूं। तू कह रहा है कि मैं इसका पता पूछता? मुझे तो पता पूछने की होश ही नहीं है, मैं तो इसका मुबारक चेहरा ही देखता रह गया। जिसके बारे में फिर मेरे शाह साहब ने फरमाया है, मुख चंद बदर शाशानी है, बते चमके लाड नवानी है, काली जुल्फ के आंख मस्तानी है, पूर अकील मन बनिया इस सूरत रूप में जान आखा, जानान के जाने जहान आखा, सच्चा कर रब दी ने शान आखा, ती शान तो शाना सकरिया, तो अबरू कोस मिसाल से जिन लोग के बयान में तीर छुटन, नमाज़ों का अखा के लाल जवान, जिन्हें दंद मोदी दिया हिल्लरिया, मुख चंद बदर शाशानी है, बते चमके लाड नवानी है, काली जुल्फ के आंख मस्तानी है, मजबूर अकील मन बनिया, सुभान अल्लाह व अजमलका व आसरका व अकमलका, किते मेर अली किते तेरी सदा, गुस्ताख किया किते जान लिया। साथ वाला कहने लगा कि तूने इसका पता नहीं पूछा, तू जानता नहीं ये कौन है, कहां से आया है, कहां का रहने वाला है। कहने लगा मुझे होश नहीं रही, कहने लगा मुझे तो होश नहीं रही, कौन मुझसे मांग कर आया, मेरा बस दिल किया कि ये जो मांगता है इसको मैं दे दूं। कहता है मैं तो बस इनका मुबारक चेहरा ही देखता रहा। एक आवाज देने वाले ने और कहा कि भाई तू इनका जानता नहीं है, तूने अपने अरब में ये लाल ऊंट कैसे दे दिया है? क्या तूने देखा नहीं है ये कहां से है? तूने देखा भी नहीं और आंखों से ओझल हो गया है। जब दूसरे बंदे ने कहा ना, तो कहने लगा कि तू कहता है कि मैं उसका पता पूछता, तू कहता है कि मैं उससे उसका ये पूछता कि कहां से आया है, मैं ये पूछता उसने कहां पर जाना है। मैं तो उसकी मुबारक जुल्फों को देखता रहा, मैं तो उसकी जुल्फों के पेचो खम को देखता रहा, मेरी नजरें तो उसके जुल्फों में थमी रही।
वापस आ रहे हैं। थोड़ी देर गुजरी, अब आशिकाने मुस्तफा आखिरी जुमला आएगा, तो से समाज फरमा लीजिए। अब जब हजूर आ गए ना, हजूर आ गए, अभी बातें हो ही नहीं थी कि हजूर आ गए। हजूर ने कहा कि अब बताइए बताइए, और कहने की मैंने कहा था ना कि ये मुबारक चेहरे वाला झूठा नहीं हो सकता, ये इसका चेहरा बता देगा झूठा नहीं हो सकता, ये सच बोलने वाला है। अब बताओ वो आ गया है, अब बताओ वो आ गया है। अब कहने लगे हजूर ने कहा बताओ मालिक इसकी क्या कीमत है। आशिकाने मुस्तफा बड़ी तवज्जो के साथ, इश्क के साथ इस जुमले को समाप्त कर लीजिए। जब हजूर ने पूछा कि बताएं इसकी कीमत क्या है, वो सारे एक जुबान होकर कहने लगे भाई आप किस कीमत की बात कर रहे हो, आप किस कीमत की बात कर रहे हो। अब ऊंट की कोई कीमत नहीं है, हमारा अपना सौदा तेरे मुस्तफा में हो चुका है। आपके पास एक काफिला आ गया, एक बारात जा रही थी, आप ना बाहर बैठे हुए थे, आपके पास एक बारात गुजरी, शादी एक बारात गुजरी। आशिकाने मुस्तफा तवज्जो देनी है ना, इसी तरह जोर से बैठना है। आपके सामने एक बारात गुजरी, बारात कहने लगी असी अहमदपुर जाने, बारात वाले कहने लगे सुल्तान बाहू से कहने लगे असी अहमदपुर जाने। आपने क्या अहमदपुर जाने, आपने क्या अहमदपुर जाने, अहमदपुर पहुंचाना सुल्तान बाहू के पास। एक बारात गुजरी ना, तो बारात वाले कहने लगे बाबा जी असी
حضور सलाम आपने حضرت معاذ بن جبل کے ساتھ نا ان کو قافلے پر روانہ کرنے لگے. آپ نا معاذ بن جبل کو آپ نے ہمارے آقا و مولا نے معاذ بن جبل کو نا گھوڑے پر سوار کیا اور سوار کر کرنا آپ ان کے ساتھ ساتھ ان کو بٹھا دیا اور ہمارے آقا و مولا ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. ساتھ ساتھ ان کو تاکید فرما رہے ہیں کہ معاذ ایسے کرنا ایسے کرنا ایسے کرنا. جنگ کے بارے میں بتانے لگے. جب جنگ کے بارے میں بتانے لگنا تو چلتے چلتے آپ نے جب اس جگہ پر پہنچے نا جہاں پر آج حضور کی قبر انور ہے تو معاذ بن جبل آپ ان کے ساتھ حضور چل رہے ہیں. غلام گھوڑے پر ہے اور آقا پیدل چل رہے ہیں. غلام گھوڑے پر ہے اور آقا پیدل چل رہے ہیں. تو چلتے چلتے نا آپ جب اس جگہ پر پہنچے جہاں پر آج حضور کی قبر انور ہے جب آپ اس جگہ پر پہنچے تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے اس کو اشارہ کر کے فرمایا معاذ جب تو قافلے سے واپس آئے گا معاذ بن جبل جب تو قافلے سے واپس آئے گا تو یہاں پر تجھے میں نہیں ملوں گا اس جگہ پر تجھے میری قبر انور نظر آئے گی. تجھے میں نظر نہیں آؤں گا تجھے میں نہیں ملوں گا اس جگہ پر تجھے قبر انور نظر آئے گی. میری قبر انور تجھے اس جگہ پر نظر آئے گی. حضرت معاذ بن جبل نے جب یہ بات سنی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آپ اتنی زور سے رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی آنکھ مبارک میں بھی آنسو مبارک آ گئے. آپ کا رونا دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی آنکھ مبارک میں بھی اشک آ گئے. تو یہاں پر جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ تم کہتے ہو نبی کو پتہ نہیں ہے. آج مسلمان 4 جماعتیں پڑھ کے کہتا ہے نبی کو علم غیب نہیں ہے نبی کو پتہ نہیں ہے. میں نے کہا نبی خود بتا رہے ہیں کہ میں نے کہا تجھے اپنے پل کی خبر نہیں ہے. میں نے کہا تجھے اپنے آنے والی پل کی خبر نہیں ہے. پر قربان گئے مدینے والی سرکار پر وہ وہاں پر خود کہہ رہے ہیں کہ معاذ تو آئے گا میں یہاں پر نہیں ہوں گا یہاں پر میری قبر انور ہوگی. میں نے کہا جو نبی اپنے جانے کے بارے میں جانتا ہے قبر انور کے بارے میں جانتا ہے وہ نبی مدینے میں بیٹھ کر کہاں میں موجود ہر عاشق کو بھی جاننا ہے. محمود غزنوی بادشاہ ہے. اللہ اللہ. میں یہاں پر ایک چھوٹی سی بات بتا کے پھر تم کو ختم کرنا ہے. یہ آخری جملے ہیں میرے. محمود غزنوی بادشاہ سارے جانتے ہیں. سنے نا سارے محمود غزنوی کے بارے میں.
छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको पता होता है महमूद गजनवी के बारे में। वो ना वलियों से बड़ा प्यार करता था, और उसके जो मुर्शिद हैं वो थे अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह। कौन सा मुर्शिद है? अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह। जब पहली बार सुन रहे हैं उन्होंने तो पता नहीं, पर जेडे चुराई ने तो बड़ी बार वाक़या सुना रहे हैं। उसके जो उनके जो मुर्शिद थे ना महमूद गजनवी के, वो थे अबुल हसन खरकानी। एक ना उस वक्त जो महमूद का विसाल हो गया ना, जो महमूद बादशाह का विसाल हो गया, जो महमूद बादशाह का विसाल होया ना, तो उस वक्त एक नेक बंदे को ख्वाब तो मिलिया, तो उन्हें देखा कि महमूद बादशाह हो के जन्नत विच खेल रहे हैं। महमूद बादशाह हो के दुनियावी बादशाह हो के ना महमूद वो जन्नत विच खेल रहा है। जन्नत वो बुजुर्ग कहते हैं कि मैं उन्हें ख्वाब पूछा, मैं कहा महमूद तू इत्थे किस तरह आ गया? महमूद तू दुनिया का बादशाह सी, तू इत्थे किस तरह आ गया? तेरे यकीन का मैं तू इत्थे किस तरह आ गया? अब जो जुमला है ना, अल्लाह के वलियों के मानने वाले इस जुमले को सुन ले। अल्लाह के वलियों के मानने वाले इस जुमले को सुन के अपने ज़हन में बिठा ले। क्या कि जब महमूद गजनवी का विसाल हुआ, उस वक्त के एक बुजुर्ग थे, उसको ना ख्वाब में मिला। वो बुजुर्ग कहते हैं कि मैंने देखा महमूद जो है ना वो खेल रहा है जन्नत में, दुनिया का बादशाह हो के वो जन्नत में खेल रहा है। कहते हैं मैंने महमूद से पूछा कि तू जन्नत में कैसे आ गया? महमूद तू जन्नत कैसे आ गया? महमूद कहने लगा एक दफा ना मैं अबुल हसन खरकानी के यानी कि अपने मुर्शिद खाने की गली से गुजर रहा था। गली जो मैं गुजर रहा सी ना, तो मुर्शिद खाने दे विच ना कोई मलाम मुर्शिद खाने दे दरिया नूं चाड़े सन, मुर्शिद खाने के दरिया नूं चाड़े सन। जदों चाड़े सन ना उन्हां दी जिहड़ी धूड़ है ना वो बाहर आ रही सी गली दे विच। मैं जदों गली चों गुजरिया सी ना, वो मिट्टी सारी उड़ रही, मैं अख बंद करके अपने विच खलो गया। मैं कहा थोड़ी सी मिट्टी मैं अपने उत्ते ला ला। मुर्शिद खाने भी अपनी थोड़ी जेहड़ी मिट्टी है ना, जेहड़ी दरिया दे उड़ के आ रही है, वो जेहड़ी मिट्टी है ना अपने उत्ते अपने जिस्म ते ला ला। हो सकता है ऐसी मिट्टी के नाल मेरी बख्शिश हो जाए, हो सकता है इस मिट्टी के नाल मेरी बख्शिश हो जाए। वो कहता है कि इस वजह से अपने मुर्शिद खाने की जो मिट्टी है वो अपने जिस्म पर लेने की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे माफ फरमा दिया है, अल्लाह ताला मुझे जल्दी करा दिया है। मैं कहा महमूद दुनिया का बादशाह होकर अपने मुर्शिद खाने की मिट्टी अपने जिस्म पर ले, अल्लाह उसको माफ फरमा देता है। तुम्हें चूरा शरीफ नंगे पांव चल के जाए, चूरा शरीफ की मिट्टी का अदब करे, चूरा शरीफ का अदब करे, खुदा की कसम मेरा अल्लाह उसको भी माफ फरमाने वाला है। अच्छा एक हदीस पाक है कि हशर के मैदान में ना 120 सफ़े होंगी। हशर के मैदान में ना 120 सफ़े होंगी, 120 सफ़े हशर के मैदान में होंगी। और हदीस पाक में 120 सफ़े हुजूर ने फरमाया 80 सफ़े मेरी उम्मत, सुभान अल्लाह। आदम से लेके ईसा तक 40 सफ़े होंगी। हुजूर ने फरमाया 80 सफ़े मेरी उम्मत की होंगी। मैं क्या अंगूठे चुमन वाले भी मुशरिक तो काफिर हो गए, नारे रिसालत पाने वाले भी मुशरिक तो काफिर हो गए, या अली कहने वाले भी मुशरिक तो काफिर हो गए, दरबारा में जाने वाले भी मुशरिक तो काफिर हो गए। तो मैं क्या 80 सबूत वाले प्योरे पड़ गया सारे तो मुशरिक हो गए। सारा अद्धा पाकिस्तान के है ना लोगों के नाल, ये अद्धा पाकिस्तान तो सारे लोगों के नाल है। तो मैं क्या सारे मुशरिक 80 सबूत वाले प्योरे पड़ गया ने, इन्होंने पूरा पाकिस्तान दुनिया के मुसलमान है नहीं, ज्यादा तादाद में तो 80 लोग। मैं क्या ज्यादा तादाद में मुझे चुपन वाले भी है, दरबारा में जाने वाले भी है, मैं सारे मैं क्या 80 समय वाले प्योर पड़ रही है। वो 80 सफ़े कैसे भरी जाएगी? सुभान अल्लाह। वो 80 सफ़े कैसे भरी जाएंगी? वो ऐसे भरी जाएंगी कि गौस पाक अपने मुरीदों के साथ खड़े होंगे, गौस पाक अपने मुरीदों के साथ खड़े होंगे, जुनैद बगदादी अपने मुरीदों के साथ खड़े होंगे, यजीद